चैप्टर 6 फर्स्ट फ्लाइट द 100 dresses too. While the class was circling the room. जब कक्षा कमरे का चक्कर लगा रही थी. The monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. प्रिंसिपल के कार्यालय से मॉनिटर मिस मेसन को एक नोट लाया. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. मिस मेसन ने इसे कई बार पढ़ा और कुछ देर तक इसका विचार पूर्वक अध्ययन किया. Then she clapped her hands. फिर उसने ताली बजाई. Attention, class. Everyone back to their seat. ध्यान दे, क्लास. हर कोई अपनी सीट पर वापस आ जाए. When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet. जब पैरों का हिलना बंद हो गया और कमरा शांत हो गया. Miss Mason said, I have a letter from Wanda's father that I want to read to you. तो मिस मेसन ने कहा, मेरे पास वांडा के पिता का एक पत्र है जिसे मैं आपको पढ़ना चाहती हूँ. Miss Mason stood there a moment and the silence in the room grew tense and expectant. मिस मेसन एक पल के लिए वहां खड़ी रही और कमरे में सन्नाटा तनावपूर्ण और प्रत्याशित हो गया. The teacher adjusted her glasses slowly and deliberately. शिक्षिका ने अपना चश्मा धीरे धीरे और जानबूझकर समायोजित किया. Her manner indicated that what was coming this letter from Wanda's father was a matter of great importance. उसके व्यवहार से पता चला कि वांडा के पिता का यह पत्र क्या कह रहा था, यह बहुत महत्वपूर्ण बात थी. Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. जब मिस मेसन ने संक्षिप्त नोट पढ़ा तो सभी ने ध्यान से सुना. Dear teacher, प्रिय शिक्षक, My Wanda will not come to your school anymore. मेरी वांडा अब आपके स्कूल में नहीं आएगी. Jake also. Jake भी. Now we move away to big city. अब हम दूर बड़े शहर में चले गए. No more holler Polak. पोलाक को अब और चिल्लाने की जरूरत नहीं है. No more ask why funny name. अब और नहीं पूछेंगे कि अजीब नाम क्यों है. Plenty of funny names in the big city. बड़े शहर में बहुत सारे मजेदार नाम. Yours truly. भवदीय यानी आपका विश्वासी. Jan Petronsky. A deep silence met the reading of this letter. इस पत्र को पढ़कर एक गहरी खामोशी छा गई. Miss Mason took off her glasses. मिस मेसन ने अपना चश्मा उतार दिया. Blew on them and wiped them on her soft white handkerchief. उस पर फूंक मारी और उसे अपने मुलायम सफेद रुमाल से पोंछ लिया. Then she put them on again and looked at the class. फिर उसने उन्हें दोबारा पहना और कक्षा की ओर देखा. When she spoke her voice was very low. जब वह बोलती थी तो उसकी आवाज बहुत धीमी थी. I am sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings. मुझे यकीन है कि रूम 13 में कोई भी लड़का और लड़की जानबूझकर किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा. Because his or her name happened to be a long, unfamiliar one. क्योंकि उसका नाम लंबा, अपरिचित था. I prefer to think that what was said in thoughtlessness. मैं यह सोचना पसंद करता हूँ कि जो कहा गया था वह बिना सोचे समझे कहा गया था. I know that all of you feel the way I do. मुझे पता है जैसा कि मैं महसूस करता हूँ, आप सभी भी ऐसा ही महसूस करते हैं. That this is a very unfortunate thing to have happened, unfortunate and sad, both. कि यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद दोनों. And I want you all to think about it. और मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसके बारे में सोचें. The first period was a study period. प्रथम अवधि अध्ययन अवधि थी.
Maddie tried to prepare her lessons. मैडी ने अपने पाठ तैयार करने की कोशिश की. But she could not put her mind on her work. लेकिन वह अपना मन अपने काम पर नहीं लगा सकी. She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. उसके पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द महसूस हो रहा था. True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet. सच है, उसे यह सुनकर अच्छा नहीं लगा कि पैगी ने वांडा से पूछा कि उसकी अलमारी में कितनी पोशाकें हैं. But she had said nothing. लेकिन उसने कुछ नहीं कहा था. She had stood by silently. वह चुपचाप खड़ी रही. And that was just as bad as what Peggy had done. और यह उतना ही बुरा था जितना पैगी ने किया था. Was. She was a coward. ज्यादा बुरा. वह कायर थी. At least Peggy hadn't considered they were being mean. कम से कम पैगी ने यह नहीं सोचा था कि वे दुष्ट हो रहे थे. But she, Maddie, had thought they were doing wrong. लेकिन वह, मैडी, ने सोचा था कि वे गलत कर रहे थे. She could put herself in Wanda's shoes. वह खुद को वांडा के स्थान पर रख सकती थी. Goodness! Wasn't there anything she could do? अच्छाई. क्या वह कुछ नहीं कर सकती थी? If only she could tell Wanda she hadn't meant to hurt her feelings. काश वह वांडा को बता पाती कि उसका इरादा उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था. She turned around and stole a glance at Peggy. वह मुड़ी और पैगी पर नजर डाली. But Peggy did not look up. लेकिन पैगी ने ऊपर नहीं देखा. She seemed to be studying hard. वह लगन से पढ़ाई कर रही थी. Well, whether Peggy felt badly or not, she, Maddie, had to do something. खैर, पैगी को बुरा लगा या नहीं, उसे, मैडी को, कुछ तो करना ही था. She had to find Wanda Petronsky. उसे वांडा पेट्रोन्स्की को ढूंढना था. Maybe she had not yet moved away. शायद वो अभी तक हटी नहीं थी. Maybe Peggy would climb the heights with her. शायद पैगी उसके साथ ऊंचाइयों पर चढ़ेगी. And they would tell Wanda she had won the contest. और वे वांडा को बताएंगे कि उसने प्रतियोगिता जीत ली है. That they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful. कि उन्हें लगा कि वह स्मार्ट थी और 100 पोशाकें सुंदर थी. When school was dismissed in the afternoon, Peggy said, with pretended casualness. दोपहर को जब स्कूल की छुट्टी हुई तो पेगी ने दिखावा करते हुए कहा, Hey, let's go and see if that kid has left town or not. अरे, चलो चलकर देखते हैं कि वह बच्चा शहर छोड़कर चला गया है या नहीं. So Peggy had had the same idea. Maddie glowed. तो पैगी का भी यही विचार था. मैडी चमक उठी. Peg was really all right. पेग सचमुच बिल्कुल ठीक था. The two girls hurried out of the building. दोनों लड़कियां तेजी से इमारत से बाहर निकल गई. Up the street toward Boggins Heights. सड़क पर बोगिन्स हाइट्स की ओर. The part of town that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal. शहर का वह हिस्सा जहां नवंबर की दोपहर में ऐसी प्रतिकूल हवा थी, बूंदाबांदी, नमी और निराशाजनक. Well, at least, said Peggy gruffly. ठीक है, कम से कम, पैगी ने उदास होकर कहा. I never did call her a foreigner or make fun of her name. मैंने कभी उसे विदेशी नहीं कहा या उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसे यह जानने की समझ है कि हम वैसे भी उसका मजाक उड़ा रहे थे. I thought she was too dumb.
मुझे लगा कि वह बहुत मूर्ख थी। एंड जी, लुक हाउ शी कैन ड्रॉ। और देखो, वह कैसे चित्र बना सकती है। मैडी कुड से नथिंग। मैडी कुछ नहीं कह सका। ऑल शी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा। उसे बस यही उम्मीद थी कि वे वांडा को ढूंढ लेंगे। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर। वह उसे बताना चाहती थी कि उन्हें खेद है कि उन्होंने उसे चुना था। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज। और पूरे स्कूल ने सोचा कि वह कितनी अद्भुत थी। एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस। और कृपया दूर न जाए और हर कोई अच्छा होगा। शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस। वह और पैगी किसी भी ऐसे व्यक्ति से लड़ती थी जो अच्छा नहीं होता था। द टू गर्ल्स हरीड ऑन। दोनों लड़कियां तेजी से आगे बढ़ी। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क। उन्हें आशा थी कि अंधेरा होने से पहले वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाएंगे। I think that's where the Petronskis live, said Maddie, pointing to a little white house. मैडी ने एक छोटे से सफेद घर की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे लगता है कि पेट्रोन्स्किस यहीं रहते हैं। Wisps of old grass stuck up here, and there along the pathway like thin kittens. पुरानी घास के टुकड़े पतली बिल्ली के बच्चों की तरह रास्ते में इधर-उधर चिपके हुए थे। The house and its sparse little yard looked shabby but clean. घर और उसका विरल छोटा सा आंगन जर्जर लेकिन साफ सुथरा लग रहा था। It reminded Maddie of Wanda's one dress. इसने मैडी को वांडा की एक पोशाक की याद दिला दी। Her faded blue cotton dress, shabby but clean. उसकी फीकी नीली सूती पोशाक, जर्जर लेकिन साफ। There was not a sign of life about the house. घर के आसपास जीवन का कोई निशान नहीं था। Peggy knocked firmly on the door. पैगी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। But there was no answer. लेकिन कोई जवाब नहीं आया। She and Maddie went around to the backyard and knocked there. वह और मैडी पीछे के आंगन में गए और वहां दस्तक दी। Still there was no answer. फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। There was no doubt about it. इसके बारे में कोई संदेह नहीं था। The Petronskis were gone. पेट्रोन्स्किस चले गए थे। How could they ever make amends? वे कभी कैसे सुधार कर सकते हैं? They turned slowly and made their way back down the hill. वे धीरे धीरे मुड़े और पहाड़ी से नीचे की ओर वापस जाने लगे। Well, anyway, said Peggy. ठीक है, वैसे भी, पैगी ने कहा। She's gone now, so what can we do? वह अब चली गई है, तो हम क्या कर सकते हैं? Besides, when I was asking her about all her dresses. इसके अलावा, जब मैं उससे उसकी सभी पोशाकों के बारे में पूछ रहा था। She probably was getting good ideas for her drawings. तो शायद उसे अपने चित्रों के लिए अच्छे विचार मिल रहे थे। She might not even have won the contest, otherwise. अन्यथा वह प्रतियोगिता भी नहीं जीत पाती। Maddie turned this idea carefully over in her head. मैडी ने इस विचार को सावधानी से अपने दिमाग में घुमाया। For if there were anything in it she would not have to feel so badly. क्योंकि अगर इसमें कुछ भी होता तो उसे इतना बुरा महसूस नहीं करना पड़ता। But that night she could not get to sleep. लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आ सकी। She thought about Wanda and her faded blue dress and the little house she had lived in. उसने वांडा और उसकी फीकी नीली पोशाक और उस छोटे से घर के बारे में सोचा जिसमें वह रहती थी। And she thought of the glowing picture those 100 dresses made all lined up in the classroom.
और उसने कक्षा में पंक्तिबद्ध उन 100 पोशाकों की चमकती तस्वीर के बारे में सोचा। At last Maddie sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought. आखिरकार मैडी बिस्तर पर बैठ गई और अपने माथे को अपने हाथों में कसकर दबाया और सचमुच सोचने लगी। This was the hardest thinking she had ever done. यह उसके द्वारा अब तक की गई सबसे कठिन सोच थी। After a long, लंबे समय के बाद, long time, she reached an important conclusion. काफी देर बाद वह एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंची। She was never going to stand by and say nothing again. वह कभी भी खड़ी होकर फिर कुछ नहीं कहने वाली थी। If she ever heard anybody picking on someone. अगर उसने कभी किसी को इसलिए चिढ़ाते हुए सुना, because they were funny looking or because they had strange names, she'd speak up. क्योंकि वे अजीब दिखते थे या उनके अजीब नाम थे, तो वह बोलती थी। Even if it meant losing Peggy's friendship. भले ही इसका मतलब पैगी की दोस्ती खोना हो। She had no way of making things right with Wanda. उसके पास वांडा के साथ सब कुछ ठीक करने का कोई रास्ता नहीं था। But from now on she would never make anybody else that unhappy again. लेकिन अब से वह फिर कभी किसी को इतना दुखी नहीं करेगी। On Saturday Maddie spent the afternoon with Peggy. शनिवार को मैडी ने दोपहर पैगी के साथ बिताई। They were writing a letter to Wanda Petronsky. वे वांडा पेट्रोन्स्की को एक पत्र लिख रहे थे। It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. यह महज एक मैत्रीपूर्ण पत्र था जिसमें प्रतियोगिता के बारे में बताया गया था और वांडा को बताया गया था कि वह जीत गई है। They told her how pretty her drawings were. उन्होंने उसे बताया कि उसके चित्र कितने सुंदर थे। And they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. और उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसे वह जगह पसंद है जहां वह रह रही है और क्या उसे अपना नया शिक्षक पसंद है। They had meant to say they were sorry. उनके कहने का आशय यह था कि उन्हें खेद है। But it ended up with their just writing a friendly letter. लेकिन इसका अंत उनके द्वारा केवल एक मैत्रीपूर्ण पत्र लिखने के साथ हुआ। The kind they would have written to any good friend. जिस प्रकार उन्होंने किसी भी अच्छे मित्र को लिखा होगा। And they signed it with lots of X's for love. और उन्होंने इस पर प्यार के लिए बहुत सारे X के साथ हस्ताक्षर किए। They mailed the letter to Boggins Heights, writing please forward on the envelope. उन्होंने लिफाफे पर कृपया अग्रेषित करें लिखकर बोगिन्स हाइट्स को पत्र भेज दिया। Days passed and there was no answer. दिन बीतते गए और कोई जवाब नहीं आया। But the letter did not come back. लेकिन पत्र वापस नहीं आया। So maybe Wanda had received it. इसलिए शायद वांडा को वह मिल गया था। Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. शायद वह इतनी आहत और गुस्से में थी कि जवाब नहीं दे रही थी। You could not blame her. आप उसे दोष नहीं दे सकते। Weeks went by and still Wanda did not answer. सप्ताह बीत गए और फिर भी वांडा ने उत्तर नहीं दिया। Peggy had begun to forget the whole business. पैगी सारा कारोबार भूलने लगी थी। And Maddie put herself to sleep at night making speeches about Wanda. और मैडी रात में वांडा के बारे में भाषण देकर सो जाती थी। Defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with. उसे लड़कियों की बड़ी भीड़ से बचाती थी जो उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी। How many dresses have you got? तुम्हारे पास कितनी पोशाकें हैं? And before Wanda could press her lips together in a tight line,
और इससे पहले कि वांडा अपने होठों को कसकर एक साथ दबा पाती। The way she did before answering. जिस तरह उसने उत्तर देने से पहले किया था। मैडी would cry out, stop. मैडी चिल्ला उठी, रुको। Then everybody would feel ashamed the way she used to feel. तब हर कोई उसी तरह शर्मिंदा महसूस करेगा जैसे वह महसूस करती थी। Now it was Christmas time and there was snow on the ground. अब क्रिसमस का समय था और ज़मीन पर बर्फ थी। Christmas bells and a small tree decorated the classroom. क्रिसमस की घंटियों और एक छोटे पेड़ ने कक्षा को सजाया। On the last day of school before the holidays. छुट्टियों से पहले स्कूल के आखिरी दिन। The teacher showed the class a letter she had received that morning. शिक्षिका ने कक्षा को एक पत्र दिखाया जो उसे उस सुबह मिला था। You remember Vanda Petrinsky, the gifted little artist who won the drawing contest? आपको ड्राइंग प्रतियोगिता जीतने वाली प्रतिभाशाली छोटी कलाकार वांडा पेट्रोनस की याद है? Well, she has written me. खैर, उसने मुझे लिखा है। And I am glad to know where she lives. और मुझे यह जानकर खुशी हुई कि वह कहाँ रहती है। Because now I can send her medal. क्योंकि अब मैं उसे पदक भेज सकता हूँ। I want to read her letter to you. मैं उसका पत्र आपको पढ़ना चाहता हूँ। The class sat up with a sudden interest and listened intently. कक्षा अचानक दिलचस्पी के साथ उठ बैठी और ध्यान से सुनने लगी। Dear Miss Mason. प्रिय मिस मेसन। How are you and room 13? आप और कमरा 13 कैसे हैं? Please tell the girls they can keep those 100 dresses. कृपया लड़कियों को बताएं कि वे उन 100 पोशाकों को रख सकती हैं। Because in my new house I have 100 new ones. क्योंकि मेरे नए घर में 100 नई पोशाकें हैं। All lined up in my closet. जो मेरी अलमारी में पंक्तिबद्ध है। I'd like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming. मैं चाहता हूँ कि वह लड़की पैगी लाल ट्रिम के साथ हरे रंग की पोशाक का चित्रण करे। And her friend Maddie to have the blue one. और उसकी दोस्त मैडी नीले रंग की पोशाक बनाए। For Christmas, I miss that school and my new teacher does not equalize with you. क्रिसमस के लिए मुझे उस स्कूल की याद आती है और मेरे नए शिक्षक आपकी बराबरी नहीं करते हैं। Merry Christmas to you and everybody. आपको और सभी को मेरी क्रिसमस। Yours truly. भवदीय वांडा पेट्रिन्स्की। On the way home from school Maddie and Peggy held their drawings very carefully. स्कूल से घर जाते समय मैडी और पैगी ने अपने चित्र बहुत ध्यान से पकड़े हुए थे। All the houses had wreaths and holly in the windows. सभी घरों की खिड़कियों में फूलमालाएं और होली थी। Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked. किराने की दुकान के बाहर सैकड़ों क्रिसमस पेड़ों का ढेर लगा हुआ था। And in the window, candy peppermint sticks and cornucopias of shiny transparent paper were strung. और खिड़की में कैंडी पेपरमिंट की छड़े और चमकदार पारदर्शी कागज के कॉर्नुकोपिया टंगे थे। The air smelled like Christmas and light shining everywhere reflected different colors on the snow. हवा में क्रिसमस जैसी महक आ रही थी और हर जगह चमक रही रोशनी से बर्फ पर अलग-अलग रंग झलक रहे थे। Boy, said Peggy. लड़का, पैगी ने कहा। This shows she really likes us. इससे पता चलता है कि वह वास्तव में हमें पसंद करती है। It shows she got our letter. इससे पता चलता है कि उसे हमारा पत्र मिला है। And this is her way of saying that everything's all right. और यह उसका कहने का तरीका है कि सब कुछ ठीक है। And that's that.
और बस इतना ही। I hope so, said Maddie sadly. मुझे ऐसी ही आशा है, मैडी ने उदास होकर कहा। She felt sad because उसे दुख हुआ क्योंकि She knew she would never see the little tight-lipped Polish girl again. वह जानती थी कि वह उस छोटी सी तंग होंठ वाली पोलिश लड़की को फिर कभी नहीं देख पाएगी। And couldn't ever really make things right between them. और कभी भी उनके बीच चीजें ठीक नहीं हो पाएंगी। She went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink-flowered wallpaper in the bedroom. वह घर गई और उसने शयनकक्ष में गुलाबी फूलों वाले वॉलपेपर में एक फटी हुई जगह पर अपना चित्र चिपका दिया। The shabby room came alive from the brilliancy of the colors. रंगों की चमक से जर्जर कमरा जीवंत हो उठा। Maddie sat down on her bed and looked at the drawing. मैडी अपने बिस्तर पर बैठ गई और चित्र को देखने लगी। She had stood. वह खड़ी हो गई थी। By and said nothing. उसने कुछ नहीं कहा। But Wanda had been nice to her, anyway. लेकिन फिर भी वांडा ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. उसकी आंखों में आंसू धुंधले हो गए और वह बहुत देर तक तस्वीर को देखती रही। Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. फिर उसने झट से अपनी आंखें मली और ध्यान से उसका अध्ययन किया। The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. पोशाक में रंग इतने चमकीले थे कि उसने चित्र के चेहरे और सिर पर ध्यान ही नहीं दिया था। But it looked like her. लेकिन यह उसके जैसा लग रहा था। Maddie. It really looked like her own mouth. Maddie. यह वास्तव में उसके अपने मुंह जैसा लग रहा था। Why it really looked like her own self. यह वास्तव में उसके अपने जैसा क्यों दिखता था? Wanda had really drawn this for her. वांडा ने वास्तव में यह उसके लिए तैयार किया था। Excitedly, she ran over to Peggy's. उत्साह से वह पैगी के पास भागी। Peg, she said, let me see your picture. खूंटी। उसने कहा, मुझे तुम्हारी तस्वीर देखने दो। What's the matter? क्या बात? asked Peggy, as they clattered up to her room where Wanda's drawing was lying face down on the bed. Peggy ने पूछा, जब वे उसके कमरे में पहुंचे जहां वांडा का चित्र बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ा हुआ था। Maddie carefully raised it. मैडी ने सावधानी से उसे उठाया। Look. She drew you. That's you. देखो। उसने तुम्हें चित्रित किया। वह तुम हो। She exclaimed. उसने चिल्लाकर कहा। And the head and face of this picture did look like Peggy. और इस तस्वीर का सिर और चेहरा वास्तव में पैगी जैसा दिखता था। What did I say? said Peggy. मैंने क्या कहा? पैगी ने कहा। She must have really liked us, anyway. वैसे भी वह हमें सचमुच पसंद करती होगी। Yes, she must have. हाँ, उसे अवश्य होना चाहिए। Agreed Maddie. मैडी ने सहमति व्यक्त की। And she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off. और जब भी वह स्कूल के प्रांगण में उस धूप वाले स्थान पर अकेली खड़ी वांडा के बारे में सोचती थी, जो उसके चले जाने के बाद हंसती हुई लड़कियों के समूह को देखती थी, तो वह अपने आंसू पोंछ लेती थी। After she had said, "Sure, 100 of them, all lined up." उसके यह कहने के बाद निश्चित रूप से उनमें से सैकड़ों सभी पंक्तिबद्ध थे। Animals poem.
The poet tells us that he feels more at home with animals than humans. कवि हमें बताता है कि वह इंसानों की तुलना में जानवरों के साथ अधिक जुड़ाव महसूस करता है. Whom he finds complicated and false. जिन्हें वह जटिल और झूठा लगता है. I think I could turn and live with animals, they are so placid and self-contained. मुझे लगता है कि मैं घूम सकता हूँ और जानवरों के साथ रह सकता हूँ, वे इतने शांत और आत्मनिर्भर हैं. I stand and look at them long and long. मैं खड़ा रहता हूँ और उन्हें काफी देर तक देखता रहता हूँ. They do not sweat and whine about their condition. वे अपनी स्थिति के बारे में पसीना नहीं बहाते और विलाप नहीं करते. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. वे अंधेरे में जागते नहीं हैं और अपने पापों के लिए रोते नहीं हैं. They do not make me sick discussing their duty to God. वे भगवान के प्रति अपने कर्तव्य के बारे में चर्चा करके मुझे परेशान नहीं करते हैं. Not one is dissatisfied. कोई असंतुष्ट नहीं है. Not one is demented with the mania of owning things. कोई चीजों पर कब्जा करने के उन्माद से पागल नहीं है. Not one kneels to another. कोई दूसरे के सामने घुटने नहीं टेकता है. Nor to his kind. न ही अपनी तरह के लोगों के सामने. That lived thousands of years ago. जो हजारों साल पहले रहते थे. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. सारी पृथ्वी पर कोई भी सम्मानित या दुखी नहीं है. So they show their relations to me and I accept them. इस प्रकार वे मुझे अपना संबंध दिखाते हैं और मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ. They bring me tokens of myself. वे मेरे पास अपनी निशानियां लाते हैं. They evince them plainly in their possession. वे उन्हें अपने अधिकार में स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं. I wonder where they get those tokens. मुझे आश्चर्य है कि उन्हें वे टोकन कहाँ से मिलते हैं. Did I pass that way huge MES ago and negligently drop them? क्या मैं कई महीने पहले उस रास्ते से गुजरा था और लापरवाही से उन्हें गिरा दिया था. Walt Whitman. From Song of Myself in Leaves of Grass. Walt Whitman, 1819 to 1992, is a major figure in early American poetry. Walt Whitman, 1819 से 92, प्रारंभिक अमेरिकी कविता में एक प्रमुख व्यक्ति हैं. In an age when all poetry was rhymed and metrical. ऐसे युग में जब सारी कविता छंदबद्ध और छंदबद्ध थी. Whitman made a break with tradition and wrote a revolutionary new kind of poetry in free verse. Whitman ने परंपरा को तोड़ दिया और मुक्त छंद में एक क्रांतिकारी नई तरह की कविता लिखी. He was a nonconformist in all respects, including his social life. वह अपने सामाजिक जीवन सहित सभी मामलों में एक गैर-अनुरूपतावादी थे. थैंक्स. वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो. भगवान आपका भला करे.